خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ اجلاس میں سرکاری ہیلی کاپٹر کو ایئر ایمبولینس میں تبدیل کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا ایویشن کو ایئر ایمبولینس کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر عوامی خدمت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کابینہ اجلاس میں باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا ایویشن کو ایئر ایمبولینس کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ کے لیے ترقیاتی فنڈز کی حکمت عملی طے کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق نئے پی ایس ڈی پی میں 80% تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح قرار۔ اس سال تھرو فارورڈ منصوبوں کا حجم 10,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ رواں سال کے ترقیاتی بجٹ کے 10 گنا لاگت کے مساوی منصوبے زیر التوا کا شکار۔ وفاقی حکومت اگلے سال صوبائی منصوبوں کے فنڈز مختص نہیں کرے گی۔ آپ کو بتائیں نئے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے تو آئندہ مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ کے لیے ترقیاتی فنڈز کی حکمت عملی طے۔ نئے پی ایس ڈی پی میں 80% تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح قرار۔ اس سال تھرو فارورڈ منصوبوں کا حجم 10,000 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق نئے پی ایس ڈی پی میں 80% تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو نئے پی ایس ڈی پی میں 80% تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح قرار۔ اس سال تھرو فارورڈ منصوبوں کا حجم 10,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ نئے پی ایس ڈی پی میں 80% تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح قرار۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ کے لیے ترقیاتی فنڈز کی حکمت عملی طے کر لی گئی۔ نئے پی ایس ڈی پی میں 80% تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے شاہد اجمل سے۔ جی شاہد بتائے گا اس سال تھرو فارورڈ منصوبوں کے حوالے سے بھی اور زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل، آئندہ مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ کے لیے ترقیاتی فنڈ کی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے پی ایس ڈی پی میں 80% تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سال تھرو فارورڈ منصوبوں کا حجم جو ہے وہ 10,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ رواں سال کے مالی سال کے دوران ترقیاتی بجٹ کے 10 گنا لاگت کے مساوی منصوبے زیر التوا ہیں۔ وفاقی حکومت اگلے سال صوبائی منصوبوں کے لیے فنڈ مختص نہیں کرے گی اور صرف این ای سی سے منظور شدہ کم ترقی یافتہ اضلاع کے لیے جو ہے فنڈ مختص رکھے جائیں گے، اور اس سال جن منصوبوں کو مکمل فنڈ مل چکے ہیں ان کے لیے اگلے سال فنڈ مختص نہیں ہوں گے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تعمیر کے منصوبے بھی ترجیح قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگلے سال اڑان پاکستان کے ویژن کے مطابق منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی اور کاروبار میں جدت اور تحقیق کو ترقی کے منصوبوں کے لیے فنڈ جو ہے وہ رکھے جائیں گے، جبکہ وزارت منصوبہ بندی نے 31 مارچ 2025 تک نئے منصوبوں کے پی سی 1 طلب کر لیا ہے۔ سے اگلے 2 سال کی بیرونی فنڈنگ کا تخمینہ بھی طلب کیا گیا ہے۔ مالی سال 2026-27 اور 27-28 کے ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ بھی تیار کیا جائے گا۔ جی اس سال تھرو فارورڈ منصوبوں کا حجم 10,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ شاہد اجمل، وفاقی فنڈز کی حکمت عملی طے ہونے کے حوالے سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ سیاسی بحران، لیکن اس سے بھی بڑا نیتوں کا بحران ہے۔ کنوینئر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس کہا، ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے۔ جو وسائل ملک کو ملے ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ موجودہ حالات 2018 انتخابات کے بعد کا نتیجہ 18 کروڑ نوجوان آباد ایک چیلنج کی شکل میں موجود ہیں۔ پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ نہیں سیاسی بحران ہے۔ پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ سیاسی بحران کو قرار دیا گیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا نیتوں کا بحران ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ باتیں نہیں کام، بیانات نہیں خدمت کیجیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ایم کیو ایم کو کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کی پیشکش۔ کہا، آپ شہر کی خدمت کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر لاہے عمل بنائیں۔ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال دونوں اپنا پلان بتائیں۔ آپ مرکز میں حکومت کے اتحادی ہیں۔ وزیر اعظم سے کہیں نہ کہ وہ شہر کو اپنا حق دیں۔ شہر میں 3 دن گزار کر کراچی کے صنعت کاروں کے مسائل سنیں۔ انہیں گیس سے صرف پریس کانفرنس سے بات نہیں بنتی۔ میئر کراچی نے کہا، اسلام آباد سے کوئی بیوروکریٹ کراچی کے فیصلے نہیں کر سکتا، ہمیں لڑائی ختم کر کے آگے جانا ہوگا۔ مقبول صدیقی اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو فاروق بھائی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں
बयानबाजी से गुरेज करें, मैं उनका हाथ थामता हूं, मेरे साथ चलें। फारूक सत्तार साहब पुराने मेयर थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब पुराने मेयर हैं, आइए साथ बैठिए, मिलकर काम कर लेते हैं। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर फारूक भाई काम करना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब काम करना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी तैयार हूँ। वज़ीर आज़म साहब आइए 3 दिन कराची शहर में गुजारिए, हमारे सनतकार के जो मसले हैं उनको भी हल करें कि गैस उनको नहीं मिल रही, बिजली के जो मसाइल हैं। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। लाहौर की इस्तादे दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब की बुरी जमानतों में 18 फरवरी तक तौसीह कर दी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि आइन के लिए बाहर निकलने वालों को सलूट पेश करते हैं। जमहूरियत और कानून के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। 110 गाड़ियां एफबीआर खरीद रहा है, सरमायाकारी जीरो है। 500 अरब रुपए का पेट्रोल बलूचिस्तान से स्मगल हो रहा है। इन हालात में महंगाई और बढ़ेगी, हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। तर्जमान पीडीएमए का कहना है कि आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता रात से मरी में 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। सड़कों पर इंतजामिया के डैम से नमक का छिड़काव किया जा रहा है। गलियात में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, अशूबिया, ढोंगा गली में 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमा जेडीए की मशीनरी बर्फबारी साफ करने में मसरूफ है। गलियात में बर्फबारी हुई है। नथिया गली, अयूबिया और डूंगा गली में 5 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। राब्ता सड़कें बंद हैं। गलियात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद खुश्क साली के बाद वादी लीपा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और कुदरती मंजर मजीद दिलकश हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मजीद बर्फबारी की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि जेहलम वैली के बाला इलाकों में बर्फबारी और ज़ेरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर चुका है। बर्फबारी के सबब वादी लीपा का मुजफ्फराबाद और जेहलम वैली से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है, जबकि बाग को जेहलम वैली से मिलाने वाली रोड सुदन गली से बंद हो चुकी है, जिसके नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। वादी नीलम के बाला इलाकों में भी बर्फबारी जारी है, जबकि ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मरकजी शाहराह नीलम पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस्लामाबाद में सुबह से मौसम अबर आलूद है। ठंडी और तेज हवाएं भी चल रही हैं। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। मजीद मौसम का हवाल जानते हैं अरशद शाद से। अरशद बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि दिसंबर जनवरी बिना बरसे ही गुजर गया। रवां हफ्ते की शुरुआत में सूरज अपनी आबोताब के साथ निकल रहा था, जिससे दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, जबकि हमें शाम और सुबह के वक्त हल्की फुल्की सर्दी महसूस होती थी। लेकिन गुज़िश्ता रात से बाराकऊ और इसके जो मलहिका इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी हुई और इसके साथ साथ मरी में हल्की फुल्की बर्फबारी हुई, जिससे ठंडी हवाएँ जो हैं वो शहरी इक़्तिदार की तरफ आना शुरू हो गई और इस टाइम इस्लामाबाद में जो है वो सर्दी की लहर छाई हुई है। अगर हम बात करें मुल्क के दीगर इलाकों की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में जो है वो मौसम आज के दिन सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के इम्कानात हैं और कहीं जो है वो हल्की फुल्की बर्फबारी के इम्कानात हैं। शहरी इक़्तिदार में आज के दिन कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 40% है और 8% फी किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने मौसम को काफ़ी जो है वो ठंडा कर दिया है। जी तो जनाब, अवाम के लिए है बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल फी लीटर की नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे, जबकि डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे मुकर्रर हो गई।
वजारत खजाना ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये हो चुकी है। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई है। आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानने के दिलजेब आकाश से। जी दिलजेब आकाश, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, शहरी परेशान हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमत की तो पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमत में एक दफ़ा दोबारा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये और जबकि डीजल की कीमत में जो है वह 7 रुपये का इजाफा किया गया है। इस वक्त हम ऐसे शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये कहूँगा कोई नई बात नहीं है, ये तो मामूल है भाई, ये तो जो मर्जी कर लें। हुकूमत को चाहिए इस मामले में ख्याल करे। आम आवाम जो है उसको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपने डेली के एक्सपेंस को मीट करना ही उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। उसमें पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीज़ों के रेट बढ़ने लग जाते हैं। तो इस हवाले से उनको ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम तो बस इल्तिजा ही कर सकते हैं, कह ही सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले। आगे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर के अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऊपर से आए दिन जो है वो पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे ख़ास तौर पे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बजट जो है वो आउट हो जाता है और हमारे जो घर के चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, महकमा सेहत लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम का गबन। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने AG ऑफिस से बाकायदा राबिता कर लिया। महकमा सेहत की जानिब से आला सतही इंक्वायरी की भी हिदायत कर दी गई है। DHO डॉक्टर इनायतुर रहमान का तबादला 26 सितंबर 2024 को किया गया। 27 सितंबर को नए DHO डॉक्टर इसरारुल हक ने ओहदे का चार्ज लिया। माली इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए AG ऑफिस को अपने पेशरू और खुद के दस्तखत अरसाल कर दिए गए। AG ऑफिस को नए दस्तखत अरसाल करने के बावजूद DDO के दस्तखत तब्दील नहीं किए। ये एक नया स्कैंडल है जिसके लिए महकमा सेहत ने छानबीन का फैसला किया। AG ऑफिस से भी छानबीन करके और इस हवाले से मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त कर दी गई। आपको बताएं, महकमा सेहत लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 करोड़ रुपए की खबन। महकमा सेहत की जानिब से आला सतह इंक्वायरी की भी हिदायत कर दी गई। महकमा सेहत लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम का गबन किया गया।